Hello students, so today we are going to continue our IUPAC nomenclature. This is the third part of IUPAC nomenclature. Before this, I have already uploaded on YouTube 2 lectures from the IUPAC nomenclature. In previous 2 videos, we studied how to write IUPAC name from the structural formula. But in this video, we will study how to draw the structure from the IUPAC naming of any compound. Suppose we are having, suppose in the exam, IUPAC name of some compound is given and we have to write the structure of that compound. Suppose the question is 2-bromo, 3-chloro, 2-bromo, 3-chloro has 2 in. This is the question, and for this IUPAC naming we have to write structural formula. So how to write the formula from the name? This is our today's task. So everyone please give the heading IUPAC nomenclature. We are studying IUPAC nomenclature, and under this IUPAC nomenclature today we are going to study how to write name or steps to write, sorry, not name, structural formula, steps to write structural formula from IUPAC name. So suppose this is the question, okay, and by using this question we will understand and write our notes, okay, that how to write the structural formula. Step 1. First, what you have to do? Step 1. First, write the carbon skeleton by using word root of IUPAC name, word root of IUPAC name of the compound. This is the name of an organic compound. Here, which one is word root? In previous videos, I have already explained you that which one is word root. Sometimes I have also taken your live classes. So in live classes also I have explained you. Here the word root is hex. Here the word root is hex. Hex means how many carbon atom? 6 carbon atom. So in the first step, what we have to do? We will first write the carbon skeleton, and in this carbon skeleton, in this chain of carbon atom, how many carbon atom will be there? 6 carbon atom will be there, because for hex, how many carbon atom will hex, for which number of carbon atom we use word hex? 6. For 6 we use hex. So here in this carbon, in the chain of carbon atom, we will use 6 carbon atom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया बेटा. Okay. Here 6 carbon atom. We will try to understand all the concept in both language, in English as well as in Hindi. Mix हो ज़्यादा अच्छा है. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here 6 carbon atom is there. This is the carbon skeleton, or it is the chain of carbon atom. This one is our first step. Okay. Here no need to write this one. This is our question. I'll use this question for explaining the steps. Okay. So this is for hex. For hex I write this one. What is the second step? Step 2.
Step 2. After this step, we will do the numbering of carbon atom from any side, from any end. From left to right we can give the number, or from right to left we can give the number. So you can use any side. Okay. So second step is, now give the numbering or number the carbon atom from any side. That is better. Number the carbon atom. Number the carbon atom of carbon skeleton from any end. From any end we can give the numbering. Suppose we are giving numbering from left side. Okay, from this side, from this end, suppose we are giving the numbering. So first 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the carbons. Give the numbering 1, 2, 3, 4, 5 and 6. After that come to the next step. What is the next step? Step 3. In the third step, what you have to do, according to the suffix can be 3 here, that can be n, that can be in, and that can be ein. Okay, that can be n, it can be in, or it can be ein. Anyone will be here. Okay, so according to the suffix used to show the carbon atom, okay, we will use the number of bond, we will add the number of bonds there. Okay, we will utilize the number of bond here. Before that, let's take a screenshot. No, I am having space, so let's write. After this, what we have to do? Add double bond or triple bond if ENE and or YNE is there as a suffix in the name of, in the IUPAC name of organic compound. Add double bond or triple bond between carbon atoms in specific position if in or YNE is there as a suffix in the IUPAC name of organic compound. Here one more thing is missing, in specific carbon atom, where you will add carbon double bond or triple bond. It depends on the question. In the question you can see first ENE is there or YNE is there. So ENE is here. Yes, ENE is here. So if ENE is here in the question, so in that time what will you do? You will see that in which position ENE is given. अभी ENE सफिक्स को सेकंड पोजीशन पे दिया गया है. सो सेकंड कार्बन एटम पे हमको डबल बॉन्ड लगाना है. ओके, एड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इफ ENE और YNE. ENE for double bond, YNE triple bond. Okay, here ENE is given, so we will add double bond. In which position? In second position. Please try to understand this step. This step is very important. Add double bond or triple bond in specific carbon atom, not anywhere.
Okay, in specific carbon atom, if ene or yne is there as a suffix in the IUPAC name of organic compound. अगर ene और yne दिया गया है तो उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे दिया गया है, हमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाना है. तो यहां पर किसमें दिया गया है? सेकंड पोजीशन. तो सेकंड पोजीशन पे हमको डबल बॉन्ड लगाना है. कैसे लगाएंगे देखिए. Where I can write here. I am erasing this one. हेडिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर. अभी देखेंगे ध्यान से. ये हमारा कंडीशन है. फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6. 2 ene. सेकंड पे ene मीन सेकंड कार्बन एटम पे, सेकंड कार्बन एटम पे ये सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड होगा. दिस वन इज द थर्ड स्टेप. After that we will come to the fourth step. First take screenshot. Okay, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं बेटा. स्क्रीनशॉट लीजिए. Done, done, good, very nice. Now step 4. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे वो देखते हैं. Step 4. Now add substituent और फंक्शनल ग्रुप और एंड. और भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है. सब्स्टिट्यूएंट को और फंक्शनल ग्रुप को जितने भी हैं, हियर यू कैन राइट एंड. Now add substituent and functional group in specific position given in IUPAC name ऑफ कंपाउंड. देखो बेटा स्टेप्स कभी नहीं पूछता. क्या क्या स्टेप्स हैं ये बताइए, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेगा. एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट आंसर करना है. स्टेप्स इज ओनली फॉर टू राइट द स्ट्रक्चर. सिर्फ समझने के लिए स्टेप्स है. ठीक है, स्टेप्स तो लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है, और वो समझना भी है. दोनों चीजें हैं. ठीक है. नाउ ऐड सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप इन द स्पेसिफिक पोजीशन of carbon chain given in IUPAC name as per the IUPAC name of compound. तो भैया यहां पर क्या दिया हो बेटा, हमने hex 2 in तो कर लिया. दिस वन इज hex 2 in. आफ्टर दैट यहां पर नंबरिंग भी लगा हुआ है. हमको सब्स्टिट्यूएंट लगाना है. 2 ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है, 3 क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है. तो पहले इतना लिख लें. 1 कार्बन, 2 कार्बन, डबल बॉन्ड, सिंगल कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन. 1 2 3 4 5 sorry 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Now according to step 4 we will add 2 bromo. Means bromo suffix comes for bromine atom. So here in second position, in second carbon atom we will add bromine. Okay beta. And in third carbon atom we will add chlorine. ठीक है. So this is the next step. Now come to the next step. ये तो फोर्थ स्टेप था. स्टेप 5. Now at last, बस यही लास्ट है, add hydrogen atoms to satisfy the valency of each carbon atom. अब क्या करना है, now at last, सबसे लास्ट में क्या करना है, this one is the last step. Add hydrogen atom to satisfy the valency of each carbon atom. जितने भी कार्बन एटम हैं इसमें वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन एटम ऐड करेंगे इन ईच कार्बन एटम. ओके, तो मैं स्टेप 2 इरेज कर देता हूं बेटा, है ना.
स्टेप 2 आप इसका स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले चुके हैं, सो इसके लिए आपको वरी नहीं करना। ओके, नाउ कम टू दी हियर। अब हमारे पास ये कंडीशन है 1 2 3 4 5 6, इस पे लगाए हैं ब्रोमीन और इस पे लगा है क्लोरीन। इट इज 1 2 3 4 5 6। What is the valency of carbon? That is 4. Means carbon maximum 4 bond बना सकता है। Now due to the valency, due to the 4 valency, tetravalency of carbon atom, it can form 4 bonds. अब ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? एक बॉन्ड। So 3 more bond it will form with hydrogen. तो कितने हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे? 3 हाइड्रोजन। मतलब एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन लग जाएगा कार्बन के साथ? अगर ऑलरेडी 1 है तो 1 + 3 4। सो हियर 3 हाइड्रोजन एटम। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड है इस कार्बन में, तो यहां कोई हाइड्रोजन ऐड करने की नीड नहीं है। नाउ कम टू नेक्स्ट कार्बन 1 2 3 4। विद दिस कार्बन ऑल्सो 4 बॉन्ड इज ऑलरेडी प्रेजेंट, सो नो नीड टू ऐड hydrogen in the third carbon. Now come to next carbon. 1 bond, 2 bond. Now what is the valency? 4. 2 bond is already present, so 2 hydrogen is required. So here we will add 2 hydrogen atom. Now come to next carbon. Here also the same thing is happening. 1 bond, second bond, 2 bond is here, so 2 hydrogen we will add. After that 1 bond is here in 6 carbon, so here we will add 3 hydrogen atom. So 3 + 1 4. So this is the now organic compound. This is the structure of the organic compound. Okay, and name of this compound is 2-bromo 3-chlorohex-2-ene. So finally, by using this 5 step, we draw the structure of an organic compound. अब यहां पर से 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं बेटा, तो हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। बिफोर दैट प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट। Okay students, so here there are some questions and we have to solve these all questions. Okay, हमको इन सारे क्वेश्चंस के लिए क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि पहले हमें सारे फंक्शनल ग्रुप में कौन से सफिक्स यूज होते हैं वो मालूम होनी चाहिए, ठीक है, जो कि पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो प्लीज रीड दैट वन कि अल्कोहल में कौन सा सफिक्स यूज होता है? ऑल। एल्डिहाइड में कौन सा सफिक्स यूज होता है? अल। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड। सो these are the suffix which is used for the naming of some functional groups, some important functional groups. तो ये बात ध्यान रखना है। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन 2,3-dimethyl हेक्सेन। 2,3-dimethyl हेक्सेन सबसे पहले इसमें फाइंड करना है आपको। फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड वर्ड रूट। सबसे पहले वर्ड रूट फाइंड कीजिए। वर्ड रूट इज हेक्स हियर, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट राइट द कार्बन स्केलेटन बाय राइट कीजिए, राइट ड्रॉ द कार्बन हेक्स 1 2 3 4 5 6 कर लिया। फ्रॉम सेकेंड स्टेप, फ्रॉम एनी वन एंड वी विल गिव द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। तो नंबरिंग कीजिए बेटा। फ्रॉम लेफ्ट साइड वी आर डूइंग 1 2 3 4 5 6 कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? दैट थर्ड स्टेप क्या है? आपका जो आईयूपीएसी नेमिंग है, क्या उसमें सफिक्स ENE या YNE यूज हुआ है? अगर हुआ है तो ENE के लिए डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा और YNE के लिए ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा स्पेसिफिक पोजीशन पे। तो देखते हैं कौन सा सफिक्स यूज हुआ है। ओके, यहां पर हेक्स के बाद ANE यूज हुआ है। ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और ऑलरेडी हमने सब में सिंगल बॉन्ड लगाया है, तो हमारा थर्ड स्टेप की यहां पर नीड नहीं रह जाएगी। अगर डबल बॉन्ड होता, ENE होता तो डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं स्पेसिफिक पोजीशन में लगाना पड़ता, और YNE होता तो ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ता। नाउ कम टू फोर्थ स्टेप। यहां क्या करना है? जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या फंक्शनल ग्रुप हैं, उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग
हमको वो सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है। यहाँ पे क्या बेटा 2,3 डाइमेथाइल। तो डाइमेथाइल, दिस मेथाइल इज द सब्स्टिट्यूएंट जो कि किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। डाई का मतलब ही 2 होता है, मींस मेथाइल हियर इट इज 2 टाइम्स। ठीक है, पार्ट 2 में जब आप वॉच किए वीडियो को, ठीक है, तो आपको मालूम है कि भाई डाई वर्ड कैसे यूज कब यूज होता है। सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 टाइम्स हो, सेम टाइप की सब्स्टिट्यूएंट, तो डाई वर्ड को यूज करते हैं। मेथाइल यहाँ पर 2 टाइम्स है, पोजीशन है 2 और 3, तो सेकंड पोजीशन पे मेथाइल ऐड करेंगे एंड थर्ड पोजीशन पे मेथाइल ऐड करेंगे। आई नो वेरी वेल दैट बहुत लोग तो अभी कर भी लिए होंगे अभी तक, है ना, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे बेटा, इसलिए प्रैक्टिस में एक एक चीज ध्यान से बता रहा हूं। आप चाहते हैं, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है लेक्चर सपोज, है ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है, तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। फास्ट फॉरवर्ड मींस स्पीड इंक्रीज कर सकते हो बाय 1.5x कर लो, है ना, स्पीड को थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो चलेगी। ओके, अब लास्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, ऐड हाइड्रोजन एंड सैटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो हर एक कार्बन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, इसके लिए हाइड्रोजन ऐड करेंगे। फर्स्ट पे कितना बॉन्ड है 1, तो कितने और हाइड्रोजन लग जाएंगे 3, 1 + 3 4। हियर 1 2 3 बॉन्ड इज ऑलरेडी प्रेजेंट, सो वन मोर valency is required to satisfy, so for that we will add 1 hydrogen. How many bond is here with this carbon, 1 2 3, so 1 hydrogen, 3 and 1 4, 1 2 2 and 2 4, 1 2 2 and 2 4, after that here only 1, so 1 and 3 4. Now this question had done. अब आ जाए सेकंड में, ठीक है, met 2 methyl prop 1 in, आइडेंटिफाई करो, प्रॉप है वर्ड रूट, प्रॉप मींस 3 1 2 3, 3 लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबरिंग 1 2 3, ये भी हो गया। थर्ड स्टेप सफिक्स फाइंड करो, ENE डबल बॉन्ड लगेगा, पोजीशन बताओ 1, फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड कर दिया। अब आ जाओ सब्स्टिट्यूएंट पे, 2 मेथाइल, सेकंड पोजीशन पे मेथाइल, सेकंड पोजीशन पे मेथाइल CH3। और बताइए लास्ट वन, हाइड्रोजन ऐड कीजिए 2, so 2 and 2 4, here 2 hydrogen. With this 1 2 3 4, no need, all are satisfied by bond only. Now come to here 1 bond, so how many hydrogen, 1 and 3 4. Now come to next question. By this way you will write the structure of all the compounds. Okay, 4 methyl pentanoic acid, pent means 5, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ओके, अब आ जाइए, यहां पर ध्यान देना है, ठीक है, मैं खास बात बताता हूं आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड है, मींस ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। फंक्शनल ग्रुप आ गया बेटा, क्वेश्चन थोड़े अब ऐसे थोड़ी कि सेम क्वेश्चन रहेंगे, है ना। ओइक एसिड मतलब यहां पर फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है, और ओइक एसिड किस फंक्शनल ग्रुप के लिए लगाते हैं, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और इसके भी कार्बन को काउंट किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना प्लीज, इस बात को ध्यान रखेंगे, प्लीज कीप दिस वन इन योर माइंड, और यू कैन राइट इट एज अ नोट इन योर नोटबुक कि आपका कार्बन एटम जो कि फंक्शनल ग्रुप का है वो भी पैरेंट चेन में काउंट होता है। ओके, तो ये जो C है, इसके बाद OOH हमको इसी में से किसी वन पे लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, ये कभी भी सेंटर पे नहीं होता, ये एंड में ही होगा। तो हम चाहे तो COOH इसको बना सकते हैं, या चाहे तो COOH इसको बना सकते हैं, किसी भी एक को। ठीक है, तो हम एंड में बनाते हैं, जनरली हम लास्ट में देखते हैं तो एंड में बना लेते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में ही मैं आ गया, वैसे फॉलो कर सकते हो स्टेप्स को, बट फिर भी ओइक एसिड दिख गया तो तुरंत वो काम कर लो, कोई इशू नहीं। ठीक, अब आ जाओ, तो पेंटेन हो गया, ओइक एसिड हो गया। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हमेशा अगर फंक्शनल ग्रुप है, अगर फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, मींस ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑलरेडी कार्बन है, तो उसको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, या नंबरिंग वहां पे 1 से स्टार्ट होता है। सो हियर कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट, so in this case numbering will start from this carbon only. अगर फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है तो नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट करनी है। This is the rule, you can write it. Numbering will be always start
from the from the carbon atom of the functional group. अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है तो उसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, तो हम लेफ्ट की तरफ आएंगे 2 3 4 5। ठीक है बेटा, नहीं समझ में आया हो प्लीज वीडियो को पीछे कर लो, थोड़ा बैक कर लो, फिर से सारी बातें सुनो, 2 बार सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा कोई खास चीज नहीं है। ठीक है, 2-3 बार सुनो, 2-3 बार प्ले बैक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वीडियो से समझने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप इसको रीप्ले कर सकते हो, फिर से वॉच कर सकते हो, री वॉच कर सकते हो। ओके, इतना सजेशन काफी है। ओके, सो ये हो गया पेंटेनोइक एसिड। नाउ इन दी 4th पोजीशन मेथाइल। 4th पोजीशन पे क्या है? मेथाइल है, ये AN है, EN नहीं है, ध्यान रखेंगे। ANOइक एसिड है तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा। अगर EN होता तो डबल बॉन्ड आ सकता था, YN होता तो ट्रिपल बॉन्ड आ सकता था, बट अभी ये AN है तो सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब आ जाओ 4 मेथाइल, 4th पोजीशन पे मेथाइल, 4th पे मेथाइल। लास्ट स्टेप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा करके सबको सेटिस्फाई कीजिए। कार्बन पे 1 बॉन्ड, फर्स्ट 5th कार्बन पे 1 बॉन्ड है, सो हियर 1 + 3 4, 1 2 3 and 1 4, 1 2, यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 2 and 2 4, 1 2, so 2 and 2 4, after that here it is already satisfied। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं लगाना, वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होता है। कैसे सेटिस्फाई होता है वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, बस क्लास 10th में अभी इतना आगे मत जाओ, है ना, अभी इतना समझते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। prop 1 ine, prop 1 ine, identify the word root prop। prop means how many carbon? 3 carbon, 1 2 3, good। then numbering from anywhere 1 2 3, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे YNE, YNE means ट्रिपल बॉन्ड, सो फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, नाउ इट कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इज देयर एनी फंक्शनल ग्रुप? नो। इज देयर एनी सब्स्टिट्यूएंट? नो। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा वर्ड रूट के पहले होता है, यहां वर्ड रूट हेड्स उसके पहले सब्स्टिट्यूएंट, यहां वर्ड रूट प्रॉप उसके पहले सब्स्टिट्यूएंट, यहां वर्ड रूट पेंट उसके पहले सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा बिफोर वर्ड रूट होता है, सेकंड वीडियो में आपको मैं बताया था। ओके, पेंटेन, अब यहां जाओ वापस, प्रॉप इसके पहले कोई है कुछ नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब क्या लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप हाइड्रोजन। ओके, सो हाइड्रोजन ऐड कीजिए। 1 2 3 bonds are there, so 1 hydrogen। 1 2 3 4 bonds are there with second carbon, so no need of hydrogen। now come to next carbon, 1 bond is here, so 3 hydrogen we will add। okay, now come to next question। pentane to all means paint, paint means 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। second, all कब लगता है? this all is added as a suffix for the functional group, and which functional group? alcohol। this one is used for alcohol, and how we represent alcohol? OH, by using OH। तो भैया OH functional group है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। OH में कार्बन नहीं है, OH में कार्बन नहीं है, तो यहां पर ये वाले क्वेश्चन के जैसा कोई नया रूल अप्लाई नहीं होगा, ऑल विल बी एज नॉर्मल। ओके, सो 1 2 3 4 5। नेक्स्ट AN है तो सब सिंगल बॉन्ड होगा, EN होता तो डबल बॉन्ड होता, YN होता तो ट्रिपल बॉन्ड होता। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट वन। इसके बाद क्या हो गया बेटा? सिंगल बॉन्ड के बाद नंबरिंग, सॉरी आई फॉरगॉट टू नंबर, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिया। अब सेकंड पोजीशन पे और, सो सेकंड पोजीशन पे OH। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे OH। नाउ लास्ट स्टेप हाइड्रोजन एटम, एड हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द वैलेंसी। तो भाई वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर हियर? 1 bond is here, so how many hydrogen we will require to add? 3 3 and 1 4, 1 2 3 3 bonds is here, 1 2 3 3 bonds are here। how many hydrogen? 1 3 and 1
4. Now come to next one. 1 2. Two bonds are here. How many hydrogen? 2. 2 and 2 4. Now come to next one. One bond is here, two bond is here, 2 and 2 4. One bond is here, so 3 hydrogen will be here. So 3 and 1 4. Okay, so this is the structure for IUPAC name, for this name. And in the answer you will erase the number. भैया आंसर में आप नंबरिंग को हटा देंगे, ठीक है? फाइनल आंसर में नंबरिंग को हटा देंगे. वैसे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बट हटा देंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन. 3 methyl pent एन 1 अल, पेंटेनल. ओके, तो भैया ये आ जाओ. पेंट मीन्स 5 कार्बन, लगा लो 5 कार्बन. हियर आई कैन इरेज इट नाउ. अब तो ये आपको याद हो चुका होगा, ठीक है? तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5. आफ्टर दैट फाइंड फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप देख लो, यूज हो रहा है क्या? यस, यूज हो रहा है. अल इज यूज फॉर एल्डिहाइड. अल यूज होता है एल्डिहाइड के लिए, और जिसका मैं फॉर्मूला अभी लिख दिया आपके सामने, CHO. मीन्स इसमें कार्बन है अवेलेबल, मतलब इसकी जैसा क्वेश्चन बन गया. कार्बन है अवेलेबल, तो कार्बन है, तो इस कार्बन को काउंट करना है हमको. 1 2 3 4 5. तो ये जो 5th नंबर जो हम बोल रहे हैं अभी, इसी को आपको फंक्शनल ग्रुप बना देना है. तुरंत ये काम कर लो, तुरंत ये काम कर लीजिए. अल में और ओइक एसिड में तुरंत ये काम कर लो, क्योंकि इसके कार्बन को भी काउंट करना पड़ता है और इसको 1 नंबर देना है. इसको 1 नंबर दे करके हमको नंबरिंग करना है. सो दैट इज 1, दैट इज फर्स्ट नंबर, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ. इसलिए मैं प्रैक्टिस की क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको करवा रहा हूं, ताकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो रूल्स में नहीं हुए होते, तो वो कवर अप हो जाता है. ओके, 1 2 3 4 5. After that, what will be the next step, beta? Next step is find the suffix, that is an or in or ein. So that is an, an. मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे. Not, there is no issue now. Okay. अब हम क्या देखेंगे? Now what we will see? Substituent. Substituent है क्या? Yes. Before word root there will be substituent. ये word root है, इसके पहले substituent methyl है. थर्ड पोजीशन पे methyl CH3. Now last step, add hydrogens. Hydrogen add करें. How many bonds are here? 1. So 1 plus 3 4. How many bonds are here? 2. 2 plus 2 4. How many bonds are here with this carbon? 1 2 3. So 3 and 1 4. How many bonds are here with this carbon? 1 and 2. 1 and 2. So 2 and 2 4. Now that is complete. So this were the rule and some practices for naming, for writing of the structural formula from IUPAC naming of any compound. IUPAC naming से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. तो ये वीडियो का एम था. अब सिंपल सी और एक टास्क आपके लिए बचता है, वो है प्रैक्टिस. आप क्वेश्चंस निकालिए बुक से, बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए. दैट इज ओनली रिक्वायर्ड. ओके, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग वट एवर आई एम टीचिंग टू यू, वट एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा उसका नॉलेज, उसका नोटिफिकेशन आपके मैसेज बॉक्स में आपको मिल जाए. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस.